Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your home. Okay, so in the previous video we will discuss about the location and shapes of earth and the latitudes, longitudes and solar system. Okay, so in this today we will discuss about the uh, main latitudes and the main longitudes and then the different zones of earth. Okay, so we will discuss about different three zones of earth in this video. So let's start. Notice that there is a horizontal line drawn in the center of the earth surface is called equator. Okay, so I already told you. Okay, this is our earth and the horizontal line drawn in the center is called equator. Okay, the equator divide earth into two equal part. दो हिस्सों में उसको बांटता है. The portion have equator is called northern hemisphere. This is the north pole and this is the south pole. And the equator is called northern hemisphere. मतलब this is the northern hemisphere. And the portion toward the south of equator, this portion is called southern hemisphere. Thus latitudes is in its north are called northern latitudes and this towards south called southern latitudes. मतलब जो भी latitudes कौन से हिस्से में आएगा, नॉर्थ में, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स. और जो साउथ के हिस्से में आएगा उसे हम क्या कहेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स. .5 north latitudes in the northern hemisphere is called Tropic of Cancer. Okay, so you see in this picture, this is the equator. Okay, this is the north latitude, 23.5 north latitude in northern hemisphere is called Tropic of Cancer. Main latitudes which 23.5 degrees south latitude in the southern hemisphere is called the Tropic of Capricorn. Okay, so similarly latitudes in the north of the equator is called 66. This is 66.5 north latitudes is called Arctic Circle and 66.5 5 degree latitudes in the south of equator is called Antarctic Circle. Okay, तो दोनों का आप देखेंगे जो है वो डिग्री जो है उसका 23.5, इसका भी 23.5, लेकिन क्या है डिफरेंट लोकेशन में आता है. एक नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ साइड पे, और दूसरा साउथ साइड पे. तो जो नॉर्थ साइड्स पे 23.5 साउथ लैटिट्यूड्स है, इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड्स जो भी latitudes है, it's called Arctic Circle. and in the south, okay, 23.5 latitudes in the south, it's called Tropic of Cancer. and the 66.5 latitude in the south of equator is called Arctic Circle. तो बीच की जो लाइन है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है अर्थ को, इट्स कॉल्ड इक्वेटर. ओके, ऊपर का जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है और नीचे का जो सरफेस है उसे क्या कहा जाता है, साउथर्न हेमिस्फीयर्स. तो इट्स क्लियर टू यू. The speed of sun between the Tropic of Cancer and in north and Tropic of Capricorn in south of equator is called it's called सोल्कटिस. मतलब कि सन की जो रेज हैं स्पीड्स, मतलब जो सन की जो रेज वहाँ तक पहुँचती है रोशनी सन की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स में, उसे क्या कहा जाता है, उस रोशनी को उसे कहा जाता है सोल्कटी. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, therefore the circle between these are called solstice. It takes 6 months of for the speed of sun. तो कितना टाइम लेता है, 6 month. Earth is tilted at the corner at 23.5. Thus sun rays fall almost straight. मतलब वो वहाँ पर मतलब वहाँ पर क्या होता है,
टिल्ट मैंने आपको बोला था टिटल्ड, मतलब टिटल्स मीन क्या करता है वो, टिटल्स मीन्स झुका हुआ होता है, टिटल्स मीन। तो मैक्सिमम जो सन की रेज है वो स्ट्रेट पड़ती है किसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आप जब देखेंगे उसके पिक्चर में तो आप क्लियर हो जाएगा कि जो सन की रेज है वो कैसी पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। देखिए इसमें, ओके तो रेज ऑफ सन, देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स। तो सन की रेज जो है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, ये सन है। ओके तो सन की जो रेज है वो सीधी पड़ रही है ना। सन की जो नॉर्थ पोल का साइड है लैटिट्यूड्स का एंड नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पोल पर बिल्कुल कम लाइट पहुंच रही है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, बर्फ रहती है हमेशा, है ना। सन की लाइट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड्स पर सीधी पड़ती है, और जहाँ पर आप देखेंगे तो स्लैंटी मतलब थोड़ा सा तिरछी रोशनी पड़ रही है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जीपीएस, जीपीएस ग्लोबल positioning system. Okay, global positioning system means what is the full form of GPS. Okay, तो full form of the GPS is G stand for global and P stand for positioning and S for system. तो with the help of global positioning system we come to know the latitudes and longitude location of any place through mobile phone and Google Earth. तो अभी हम GPS का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, हम जब भी कहीं नई जगह पर जाते हैं तो उस एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए, है ना, हम उसको एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ओके सो it is very important where there is place located we can easily find the exact location with the help of GPS. बट क्या होता है, कई कई बार ऐसा होता है कि हम जीपीएस की हेल्प से भी कहीं गलत हाईवे पर पहुंच जाते हैं। सो द लैटिट्यूडल्स एंड लॉन्गिट्यूडल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस में बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल विच हैव इंटरनेट एक्सेस, मतलब मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड टूडे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कैन ईजली बी अंडरस्टूड वाई विद दिस। तो जीपीएस की वजह से हम लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स लाइन से मतलब एक लोकेशन जो है वो मतलब चूज़ कर सकते हैं, लोकेशन तक हम पहुंच सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक तो मोबाइल होना चाहिए, दूसरा हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम जीपीएस का मतलब यूज़ कर सकते हैं। मेजर लॉन्गिट्यूड्स, ओके मेजर लॉन्गिट्यूड्स, तो ग्रीनविच मीन टाइम line, okay, GMT. तो I already told there are 360 longitudes, okay, and the 0 degree longitudes first and second one is the 180 degree latitudes. तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों longitudes जो हैं वो बहुत ज़्यादा important हैं। ओके सो फर्स्ट इज द ग्रीनविच मीन टाइम मतलब GMT। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GMT। तो G स्टैंड फॉर ग्रीनविच मीन मतलब M स्टैंड फॉर मीन एंड T स्टैंड फॉर टाइम। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रो, जब वो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पास करती हैं कहाँ से, थ्रो विच ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड, ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड में पड़ती है is called Greenwich line. तो Greenwich line divide Earth into two equal parts from east to west, which is known as Eastern Hemisphere and the Western Hemisphere. तो you know this is the North Pole and South side. Okay, so इसके लेफ्ट साइड की साइड कौन सी होगी, ईस्ट, और उसका अपोजिट होगा बेस्ट। ओके तो ग्रीनविच लाइन डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके दोनों को
इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट को, और दैट इज विच नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ईस्ट की साइड पे पड़ता होगा वो सरफेस ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड देन सेकेंड आप देखेंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 ऑफ ग्रीनविच लाइन्स आर कॉल्ड, जो ईस्ट की साइड मतलब 180 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन्स आर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, एंड द longitudes up to 180 west of greenwich line is called the western longitudes। जो मतलब कि वहाँ पर एंगल 180 का वेस्ट की साइड, दैट लाइन्स आर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, एंड जो कि ईस्ट की साइड पर अपना एक 180 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन्स आर कॉल्ड द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब 0 longitudes and 180 longitudes are very important। so 0 degree 0 जो longitudes it stands for greenwich line, okay, greenwich line, and the 180 longitudes is called international date line। it is just one longitudes, okay। the date and time changes when we cross this line, मतलब इसकी वजह से ही डेट और टाइम जो है वो चेंज होता है। कब चेंज होता है? when we cross this line it pass through the Pacific Ocean, जब ये पैसिफिक ओशन को क्रॉस करती है। it is exactly not at 180 at same place, it is in zigzag form। zigzag forms mean कि जब वो वहाँ से एग्जैक्टली वहाँ से निकलती है, तो जब पानी से मतलब किसी ओशन से कोई लाइन निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो सीधी नहीं रहेगी, वो जिगजैग फॉर्म में आ जाएगी। 180 उसका सीधा जो मतलब स्ट्रेट नहीं रहेगा। द रीज़न बिहाइंड इट दैट इट इफ इट इज़ ड्रॉन स्ट्रेट, क्यों स्ट्रेट है? इट विल अक्रॉस सम आइलैंड और सम कंट्री बिकॉज ऑफ विच टू डेट्स विल मिक्स अप द सेम आइलैंड। और जब वो जिगजैग मतलब जब वो क्रॉस करती है तो हमें क्या दिखता है कि एक ही आइलैंड पर 2 डेट्स दिखती है। नेक्स्ट आप इसका जो आप देखेंगे इसका डायग्राम तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन सम प्लेस वाइल गोइंग टू अदर साइड ऑफ एन आइलैंड डेट में भी चेंज विच विल बी कन्फ्यूजन। तो हमें कन्फ्यूजन देता है कि एक ही आइलैंड पर कैसे डेट और टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो वो इसीलिए होता है कि जब वो वहाँ से क्रॉस करती है तो मतलब उसका 180 जिगजैग फॉर्म में वहाँ से वो क्रॉस करती है, तो इसलिए वहाँ से टाइम जो है एक ही टाइम पर मतलब एक ही आइलैंड। टू प्रिवेंट दिस कन्फ्यूजन द लाइन इज डिवाइडेड रफली लाइन जो बनाई हुई देखिए जिगजैग फॉर्म में 180 यहाँ पे हो गया। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन ऑफ दिस लाइन इज ड्रॉन थ्रू द सी एंड नॉट द लैंड, मतलब जिस सी में बनाई गई है लाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 की, लेकिन ये कैसी हो रही है? जिगजैग फॉर्म में। और आप देखिए एक ही आइलैंड पर एक में मंडे और दूसरे में संडे बता रहा है, ओके। तो ये इस वजह से होता है, इसका जो 180 जो लैंगिट्यूड्स होती हैं जब वो पैसिफिक ओशन से गुजरती हैं तो वो जिगजैग फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए कन्फ्यूज़न रहता है हमें। तो ये रफली एक लाइन ड्रा की गई है, इस डायग्राम को आपको देखना है और समझना है। Tropics zones. From the given figure it become clear that the earth is divided into different parts on the basis of difference in temperature, light, heat and cold, okay। these parts are called zones। मतलब अर्थ को on the basis of किसके बेसिस पर? टेम्परेचर, लाइट, हीट एंड कोल्ड के बेसिस पर जोन्स में डिवाइड किया जाता है। रीजन रिसीविंग मोर आर लेस लाइट एंड हीट हैव बीन डिवाइड एज फॉलोज, मतलब देखा जाता है कि कहाँ पर ज़्यादा हीट और कहाँ पर कम मतलब लेस लाइट और हीट जो है वो पहुँचता है, उसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है जोन्स ऑफ अर्थ, ओके। क्लाइमेटिक जोन्स मतलब दिस इज द climatic zones। this is the climatic zones, okay।
So on the basis of temperature, light, heat and cold, we divide the tropics जाकि zones of earth into three part. ओके, फर्स्ट इज थ्री जोन्स, मतलब थ्री जोन्स में हम उसको डिवाइड करते हैं. पहला टॉर्डिड जोन, तीसरा दूसरा टेम्परेट जोन एंड तीसरा फ्रीजिड जोन. ओके, टॉर्डिड जोन extreme height, heavy rainfall, high temperature, varied vegetations, varied animals. varieties of vegetations भी बहुत ज़्यादा, high temperature, extreme height मतलब बहुत ज़्यादा हीट टॉरिड जोन पर, एंड हैवी रेनफॉल, तो हीट होगा तो वेपोरेशन भी होगा, तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा. टेम्परेट जोन मॉडरेट हीट, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम. मॉडरेट रेन मतलब ना ज़्यादा बारिश ना ही ज़्यादा सूखा. मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पर मतलब बीच का, ना ज़्यादा ना कम. few varieties of flora and fauna. तो what is flora and what is fauna? flora means trees and fauna means animals. तो वहाँ पर जो वेराइटीज़ जो एनिमल्स की और फोनास की होती है वो भी कम होती है ना. सो दिस इज टेम्परेट जोन. एंड थर्ड वन इज़ द फ्रीजिड जोन. एक्सट्रीम कोल्ड मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. नो रेनफॉल एंड 9 month कवर्ड विथ आइस स्लेंटी ग्रास, मतलब 9 month तक, 9 महीना तक वहाँ पर क्या रहता है, बर्फ़ रहता है. एंड स्लेंटी ग्रास मतलब ग्रास भी जो है वो बहुत कम होता है. मतलब वहाँ पे अगर इतनी ठंड रहेगी तो वहाँ पर ग्रास कैसे हो सकता है ना. सो there are the zones are divided on the basis of temperature, heat, light and cold. We can divide into three zones: torrid zone, temperate zone and frigid zone. तो इसके बेसिस पर मतलब कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कितना हीट पहुँचता है, कितनी लाइट पहुँचती है किसकी, सन की, और कितना वहाँ पर ठंड होती है, उसके बेसिस पर हम अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करते हैं. एंड फर्स्ट वन इज़ द टॉरिड जोन, second one is the temperate zone and third one is the frigid zone. Okay, so this is enough for today. In the next video we will discuss about the next part of this chapter. So this is the third part of your chapter 9. Okay, so I hope it is clear to you. If you have any doubt, you ask me in your live session. Okay, so thank you, have a nice day.